Assalamualaikum friends, I hope you are great. Today I am going to share 100 points on reptiles. These points are very much important for your competitive exam or the test of lecture zoology. But before sharing those points, let me share some images that are very helpful to understand the points that I am going to share. This is called a sea snake. We call it sea snake because it is found in coral reefs of sea, and this is called green sea turtle. टर्टल्स के बॉडी के अराउंड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे हम स्क्यूट्स कहते हैं, एक हार्ड शेल, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूट्स फाउंड ऑन द आर्मर ऑफ टर्टल्स. नॉर्मल स्क्यूट्स में डेफिनेट शेप होती है स्क्यूट्स की, और इरेगुलर जो स्क्यूट्स होते हैं उसमें इरेगुलर शेप होती है. Some species of snakes such as rattlesnakes, उसमें टेल के एंड पार्ट पर रेटल होता है, एक स्ट्रक्चर जो कि नॉइज़ पैदा करने में हेल्प करती है ताकि वो अपने प्रीडेटर को, अपने जो भी एनिमीज़ हैं उनके खिलाफ नॉइज़ पैदा कर सकें और उन्हें वार्न कर सकें. नॉर्मली जो भी वर्टेब्रेट्स हैं उसके जो एंड पार्ट होती है बोन की, विच इज़ टिपिकली राउंडेड इन स्ट्रक्चर, सो दैट राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज़ नोन एज कॉन्डाइल. इफ़ यू टॉक अबाउट ऑफ फीमर में कॉन्डाइल, उसमें उस कॉन्डाइल को हम कहते हैं फीमोरल कॉन्डाइल. बट इन रेप्टाइल्स इफ़ यू टॉक अबाउट हेड पोर्शन तो उसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल सिंगल ही होती है. दिस इज ग्रीन सी टर्टल दैट हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड इट्स ब्रीथ फॉर अप टू 2 hours विद इन सी. सो दे डाइव इन टू द सी इन सर्च ऑफ फूड, बट अपार्ट फ्राम दैट दे हैव एन एडिशनल फीचर कि जब वो सी के अंदर डाइव करते हैं तो उसके वो क्लोएका के ज़रिए रिस्पायर कर सकते हैं. देयर गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू क्लोएका. So such condition is called cloacal respiration. But when they come out of sea, they again can breathe through the lungs. The reptiles are known as the first amniotes because they are the first animals that possessed amniotic eggs. इनमें amnion होता है, amniotic egg में shell, chorion as well as allantois. So these are the basic structure of a amniotic egg. This is a Komodo dragon found in Indonesian islands. This is known as the largest lizard in the world. This is a chameleon that can extend its tongue to capture their prey. जब ये अपना टंग एक्सटेंड करते हैं तो फिर अपनी बॉडी के लेंथ से भी ज़्यादा जो है अपना टंग एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दे हैव दिस यूनिक फीचर इन कैप्चरिंग देयर प्रे. इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टर्टल्स, उसमें डोर्सल कैरापेस होता है और वेंट्रल प्लास्ट्रॉन होता है. नाउ लेट मी शेयर द पॉइंट्स व्हिच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस बुक्स. The reptiles belong to the class Reptilia of phylum Chordata. They have 3 subclasses: subclass Anapsida, subclass Lepidosauria, and subclass Archaeosauria. Reptiles के 3 main subclasses हैं. There are a total of 17 orders of reptiles, but most of the orders are extinct, which means their members do not exist today. Reptiles के टोटल 17 आर्डर्स हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा रेप्टाइल्स के आर्डर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके मेंबर्स हम आजकल नहीं देख सकते. सो दे आर नो मोर टुडे. आउट ऑफ 17 आर्डर्स, मेंबर्स ऑफ ओनली 4 orders are living today.
17 में से सिर्फ 4 ही आर्डर्स हैं जो कि लिविंग हैं. सब क्लास एनेप्सीडा इंक्लूड्स आर्डर टेस्ट्यूडिन्स दैट इंक्लूड्स टर्टल्स. सब क्लास लेपिडोसौरिया इंक्लूड्स आर्डर रिंकोसेफेलिया that includes tauteras, and order Squamata includes snakes, lizards, and worm lizards. Subclass Archaeosauria includes order Crocodilia that has crocodiles, alligators, caimans, and gavials. The reptiles are considered as amniotes because their eggs are amniotic. Reptiles amniotic egg lay करते हैं, so that's why they are known as amniotes. The reptiles are characterized by dry skin with epidermal scales. Reptiles की स्किन अमूमी तौर पर ड्राई होती है और that has epidermal scale. The scales are helpful in preventing water loss. So their scales उन्हें वाटर लूज करने से प्रिवेंट करती है. Scutes are the thick scales which are found in snakes and turtles. Turtles and snakes में एक thick covering scales होती है जिन्हें हम scutes कह सकते हैं. Beaks are found in turtles. Turtles में beaks होते हैं. The rattles are found in tail of rattle snakes. As I have shared the image कि rattle snakes में उसके tail है end part पर उसमें एक structure होता है rattles that help them to make noise and warn their enemies. The typical reptilian skull is with one half articulation with the vertebral columns referred to as occipital condyle. उसमें सिंगल ही condyle होती है हेड में जो कि jointed है, articulated है with the vertebral columns. So that condyle is known as occipital condyle. Reptiles respire through the lungs. अमीमी तौर पर जो भी रेप्टाइल्स हैं वो लंग्स के ज़रिए रिस्पायर करते हैं. हाउएवर ग्रीन टर्टल्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर क्लोएका विद इन सी. जब वो सी के अंदर डाइव करते हैं तो फिर वो क्लोएका के ज़रिए रिस्पायर करते हैं बिकॉज देयर क्लोएका पजेज एबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स. सच गैसेज एक्सचेंज थ्रू क्लोएका इज टर्म्ड एज क्लोएकल रिस्पिरेशन. और इस रिस्पिरेशन को हम कहते हैं क्लोएकल रिस्पिरेशन. The excretory organs of reptiles are metanephric kidneys. Most reptiles excrete uric acid. They uric acid excrete करते हैं. Most reptiles, their fertilization is internal since they are mostly terrestrial. If we say that they are mostly terrestrial, so terrestrial animals जो हैं उनमें ज़्यादातर internally fertilization होती है. External fertilization only takes place in water, so this term can be applied for the aquatic animals. So but if we talk about reptiles have internal fertilization because they are mostly terrestrial and they possess amniotic eggs to fully survive on terrestrial environment. तो उनमें एक amniotic eggs होता है जो कि fully survive कर सकता है terrestrial environment में. So that's why their fertilization is internal. They lay egg on land. All the male reptiles except tauteras have intermediate organ to insert sperm into the female reproductive tract. In reptiles, the sperms of male are stored in the seminal receptacle of the female reproductive tract. मेल के स्पर्म्स फीमेल के एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसे जहाँ पर सेमिनल और रिसेप्टेकल उस स्ट्रक्चर को कह सकते हैं. तो उसके अंदर स्पर्म्स रेप्टाइल्स के होते हैं वो स्टोर होते हैं. द रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट एमन्यूट्स. रेप्टाइल्स फर्स्ट एमन्यूट्स हैं एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नोट द एमन्योटिक एग्स कंटेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स which include yolk sac, the amnion, the chorion and the allantois. ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि एमनियोटिक एग्स में होते हैं. द yolk sac is formed by the proliferation of yolk. Proliferate means to increase. जब yolk increase होता है तो फिर yolk sac की फॉर्मेशन होती है.
The Galapagos Islands were named after the large species of tortoise. Galapagos Islands, जहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ट्रेवल किया था उन्होंने. सो दोज आइलैंड्स वर नेम्ड आफ्टर द स्पीशीज़ ऑफ टोर्टोइज, जिसे हम गेलापागोस कह सकते हैं, विच इज साइंटिफिकली नोन एज गेलापेगो स्पीशीज. गेलापेगो, दिस स्पीशीज inhabited Galapagos Islands. So that's why those islands are known as Galapagos Islands. The tortoises of Galapagos weigh up to 250 kg. Their eggshells are 1.8 meter in diameter. They live for 200 to 250 years. The turtles belong to the order Testudines, but they are also known as Chelonia. Formally या properly हम उसे कह सकते हैं, उसका ऑर्डर का नेम Chelonia है. There are approximately 225 species of turtles. The turtles have keratinized beak. उसकी beak keratinized है, प्रोटीन की बनी होती है. The shell of turtles is bony, which consists of two parts, carapace and plastron, the image of which I have shared already. The dorsal portion of the shell is known as carapace, and the ventral portion of the shell is known as plastron. In turtles, the expanded ribs form carapace. Turtles में carapace कैसे बनती है? This is formed by the help of expanded ribs. All turtles are oviparous, which means they lay eggs. जो भी turtles हैं वो oviparous हैं because they lay eggs. The Tauteras belong to the order Rhynchocephalia. Tautera is the only living species of the order Rhynchocephalia. उसकी सिर्फ एक ही स्पीसी है ऑर्डर Rhynchocephalia के अंदर. The Tauteras are inhabited on distant offshore islands. These are protected by New Zealand law. ये न्यूजीलैंड के कानून में ही प्रोटेक्टेड है, इसकी स्पीशीज ऑर्डर Rhynchocephalia के. The Tauteras are oviparous. They lay eggs. एग ले करते हैं. The members of order Squamata are snakes, lizards and worm lizards. ऑर्डर Squamata में snakes हैं, lizards हैं, worm lizards भी हैं. worm lizards legless होते हैं, उसमें legs नहीं होते. The order Squamata is divided into 3 suborders. ऑर्डर Squamata के अपने 3 suborders हैं. Suborder Sauria, suborder Serpentis and suborder Amphisbaenia. Suborder Sauria में lizards होते हैं which have 2 pairs of legs. They also include iguanas, included in suborder Iguania. इसका अलग suborder है Iguania. Chameleons as well as Heloderma. These are the parts of suborder Sauria. Very few lizards are legless. बहुत ही कम lizards जो हैं legless होते हैं, लेकिन बहुत ही lizards होते हैं उनमें legs पाए जाते हैं. The wall lizards are known as geckos. वो चिपकलियाँ जो आमतौर पर घरों में पाई जाती हैं, जो कि दीवारों में हम देख सकते हैं. So those lizards are known as wall lizards. Wall lizards are nocturnal होते हैं because they are active in night time, which means they are active at night time. The iguanas are characterized by short necks and distinct heads. उसके necks short होते हैं. Another group of lizards is of chameleons. एक और ग्रुप है lizards का chameleons, जिसकी इमेज मैंने शेयर की है. The chameleons live mainly in Africa and India. chameleons सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका और इंडिया में पाए जाते हैं. The chameleons are arboreal, which means they live on trees. ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हों, और so those animals are considered as arboreal. So chameleons भी arboreal हैं because they live on trees. The chameleons have long sticky tongue to capture insects. इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए chameleons के स्टिकी टंग होते हैं. Their tongue is projected out more than the length of its own body.
अपनी बॉडी के लेंथ से भी ज़्यादा वो अपना टंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एनोलिस इज़ नॉट ट्रू कैमलियन, एनोलिस भी एक ट्रू कैमलियन नहीं है। सो इट इज़ आल्सो इन बट इट इज़ आल्सो इन इग्वेनिट, हालांकि ये इग्वेनिट है बट इट इज़ नॉट ए ट्रू कैमलियन। द कैमलियंस एंड एनुलिस आर known for changing their skin color in response to temperature, illumination और it is their common behavior। कैमलियंस में और एनुलिस में एक फीचर है जिसमें वो अपने स्किन का कलर चेंज करते रहते हैं इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कुछ फ्लक्चुएशन चेंज आई है या अचानक एक लाइट उन्हें इल्यूमिनेशन लग रही है, सो वो अपना कलर जो है चेंज करते रहते हैं। सो दिस इज देयर टिपिकल एंड यूनिक बिहेवियर। हेलोडर्मा इज द ओनली जीनस ऑफ वेनमस लिजर्ड्स सच एज जीला मॉन्स्टर एंड मैक्सिकन बीटेड लिजर्ड। ये दो स्पीशीज़ हैं लिजर्ड्स के जो कि वेनमस हैं, जहरीले हैं। बोथ ऑफ दिस वेनमस लिजर्ड आर नेटिव टू साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पार्ट पर रीजन पर पाए जाते हैं। द जीला मॉन्स्टर इज साइंटिफिकली नोन एज हेलोडर्मा सस्पेक्टम। द मैक्सिकन bearded lizard is scientifically known as Heloderma horridum. The venomous lizards release their venom into the grooves on the surface of their teeth. Venomous lizards venom को release करते हैं into their grooves on the surface of their teeth, अपने teeth के surface पर वो release करते हैं। The venom from the teeth of venomous lizards are used to kill prey while chewing. जब वो प्रे को हासिल करते हैं च्यू करने के दौरान वो विनम जो है प्रे को किल करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर द लिजर्ड बाइट आर नॉट यूजुअली फेटल टू ह्यूमंस। अगर वो जो लिजर्ड हैं वेनमस, अगर वो बाइट कर रहे हैं ह्यूमन को, वो फेटल नहीं है, जानलेवा नहीं है। कोमोडो ड्रैगन इज़ नोन एज द लार्जेस्ट लिजर्ड फाउंड ऑन अर्थ। दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट लिजर्ड है वो कोमोडो ड्रैगन है। इट इज़ नेटिव टू इंडोनेशियन आइलैंड्स। इंडोनेशियन आइलैंड्स में ये एंडेमिक है, नेटिव है। सो वी कैन ओनली फाइंड देम इन दीज आइलैंड्स। द सब ऑर्डर सरपेंटिस इंक्लूड्स स्नेक्स। सब ऑर्डर सरपेंटिस में सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स हैं। देयर आर अबाउट 2300 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स। 2300 स्पीशीज हैं स्नेक्स के। द वर्ड सरपेंटिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सर्पेरी विच मीन्स टू क्रॉल। स्नेक्स यूजुअली क्रॉल करते हैं, सो एज दे डोंट हैव लेग्स, सो दैट इज़ वाई they are included within the suborder Serpentis. About 300 species of snakes are venomous. 2300 स्पीशीज़ में से सिर्फ 300 स्पीशीज़ हैं स्नेक से वो वेनेमस है। द स्नेक्स आर elongate एंड डोंट हैव एनी लिम्स। स्नेक्स में कोई भी लिम्स या लेग्स वगैरह नहीं होते। एंड देयर बॉडी इज elongate, लंबी बॉडी होती है उसकी। द स्केलेटन ऑफ snakes may contain over 200 vertebrae or pairs of ribs. in pairs of ribs, तो उसमें 200 vertebrae हो सकते हैं और कुछ ऐसे स्पीशीज़ है जिसमें pairs of ribs भी पाए जाते हैं। The upper jaws of snakes are movable which help them to swallow large prey easily. उनके अपर jaws जो हैं वो मूवेबल हैं जो कि उन्हें हेल्प करती है, जो भी लार्ज प्रे है बड़ा शिकार होगा उन्हें सही नमूने से वो निकल सके। मोस्ट स्नेक्स आर ओवीपेरस एज दे ले एग्स। बहुत से स्नेक्स ओवीपेरस हैं, एग ले करते हैं। हाउएवर फ्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक्स सच एज बोज कंस्ट्रक्टर्स एंड गार्टर स्नेक्स गिव बर्थ टू लाइव यंग विविपेरस। अगर वो लाइव यंग को बर्थ देते हैं तो फिर those two species, both constrictors and gartered snakes, are known as viviparous. Regarding the origin of snakes, scientists discovered 125 million years fossils. स्नेक्स का ओरिजिन की रिसर्च पर
साइंटिस्ट ने तकरीबन 125 मिलियन साल पहले जो फॉसिल थे उन्होंने डिस्कवर किया है. Some zoologists believe that the earliest snakes were burrowers, which were aquatic or lived in densely tangled vegetation, which forced early snakes to lose their limbs gradually on evolutionary point of view. अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो फिर स्नेक जो है अर्ली ब्रोवर्स थे. ब्रोवर्स मतलब कि वो मड के या लैंड के अंदर घुस जाते थे. सो इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम एनी प्रेडेटर्स आर फ्रॉम एनी डेंजर, सो दे यूज टू ब्रो देमसेल्फ इनटू एनी सॉइल. सो दैट्स वाई ऑन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू उनके जो लेग्स है वो उन्होंने ग्रेजुअली जो है लूज होते गए, मतलब वो उन्होंने लूज कर दिया है अपने लेग्स को. ऑन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू सी स्नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक स्नेक फाउंड इन कोरल रीफ्स. सी स्नेक एक एक्वाटिक स्नेक का एग्जाम्पल है जो कि कोरल रीफ में पाया जाता है. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट्स इमेज. इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट बैंड्स ऑफ कलर ऑन बॉडी सरफेस. उसके बॉडी सरफेस में वाइट एंड ब्लैक कलर के बैंड्स होते हैं. The suborder Amphisbaenia includes worm lizards. Suborder Amphisbaenia में worm lizards होते हैं. There are about 135 species of worm lizards. 135 species हैं worm lizards के. The worm lizards live in Africa, South America, the Caribbean and the Middle East. इन इलाकों पे worm lizards पाए जाते हैं. The worm lizards are specialized in burrowing. तो ये स्पेशलाइज्ड है एम्ब्रॉइंग में बिकॉज दे डोंट हैव एनी लेग्स. द वर्म लिजर्ड्स आर नोन फॉर देयर सिंगल मीडियन टूथ इन देयर अपर जा. सो वी कैन फाइंड ए सिंगल मीडियन टूथ ऑन देयर अपर जा. उनके अपर जा में हम एक सिंगल मीडियन टूथ ऑब्जर्व कर सकते हैं. द वर्म लिजर्ड्स फीड ऑन वर्म्स एंड स्मॉल इन्वर्टेब्रेट्स. छोटे छोटे इन्वर्टेब्रेट्स सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं और वो कुछ वॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर ये वॉर्म लिजर्ड्स फीड करते हैं. द वॉर्म लिजर्ड्स आर ओविपेरस. दे आल्सो ले एग्स. ऑर्डर क्रोकोडिलिया हैज क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, कैमियंस एंड केवियल्स. देयर आर ओनली 21 लिविंग स्पीशीज ऑफ ऑर्डर क्रोकोडिलिया. द क्रोकोडिलियंस आर इवोल्व फ्रॉम आर्कोसॉर्स सेम एज द डायनासोर्स वर आल्सो इवोल्व फ्रॉम आर्कोसॉर्स. The members of the order Crocodilia have openings in their skull in front of the eye. The eye orbits of crocodilians are triangular, not circular. Crocodilians के जो आई ऑर्बिट्स हैं वो ट्राइंगुलर है. उसमें वो 3 कोनों का होता है, कोने होते हैं, उसमें सर्कुलर नहीं होता. द क्रोकोडिलियंस हैव कंप्रेस्ड टीथ. और उनके जो टीथ हैं वो कंप्रेस्ड है, नॉट ए पॉइंटेड. द क्रोकोडिलियंस आर टर्म्ड एज अनचेंज्ड बिकॉज नो चेंज हैज़ अकर्ड फॉर ओवर 170 मिलियन ईयर्स ऑफ देयर हिस्ट्री. क्रोकोडिलियंस में खास एवोल्यूशन नहीं हुई है, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज अनचेंज्ड. 170 मिलियन से लेकर अभी तक वो अनचेंज्ड हैं. The crocodilians have snoot to capture food by moving about their head. Crocodilians में एक स्नूट है जो कि उन्हें कोई भी प्रे है उन्हें किल करने में या उसे कैप्चर करने में हेल्प करती है. The nostrils of crocodilians are located on the tip of their snoot. और उनके जो नोस्ट्रल्स हैं वो स्नूट के टिप पर पाए जाते हैं. The crocodilians have गिजर्ड लाइक स्टमक. उनका जो स्टमक है वो गिजर्ड लाइक है. द crocodilians swallow rocks along with food in order to break the ingested food apart. The reptilian skin is less glandular as compared to the amphibians. The less glandular means उसके स्किन पर ग्लैंड्स बहुत ही कम होते हैं. However, the reptiles have secret pheromones which function in sex recognition and defense. Reptiles shed their outer epidermal layers of the skin through the process of ecdysis. तो इसमें भी ecdysis होती है जिसमें अपना
आउटर एपिडर्मल लेयर्स जो है वो शेड करते हैं. द डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग डायसिस हेल्प द रेप्टाइल्स टू सेपरेट द ओल्ड एपिडर्मल लेयर्स फ्रॉम द न्यू एपिडर्मल लेयर. तो फ्लूइड की डिफ्यूजन की वजह से जो डायसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना एपिडर्मल लेयर ओल्ड जो होता है वो शेड करते हैं और रिप्लेस करते हैं न्यू एपिडर्मल लेयर से. इन रेप्टाइल्स द एक्डाइसिस जनरली बिगिंस एट द हेड रीजन, और एक्डाइसिस हेड रीजन से स्टार्ट होती है. द रेप्टिलियन स्किन इज फंक्शनली सिमिलर टू द एम्फीबियंस इन केस ऑफ क्रोमेटोफोर्स. रेप्टिलियन की स्किन जो फंक्शनली सिमिलर होती है और एम्फीबियन से, बिकॉज दे हैव क्रोमेटोफोर्स. उसमें एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कलर पैदा कर सकते हैं. द क्रोमेटोफोर्स आर यूज्ड फॉर चेंजिंग द स्किन कलर एज इन क्रिप्टिक कलरेशन, मिमिक्री एंड एबोस्मेटिक कलरेशन. ये 3 टाइप्स ऑफ कलरेशन है. क्रिप्टिक कलरेशन क्या है? रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन द कलर ऑफ द एनिमल एंड इट्स इन्वायरमेंट इज सेम. जब किसी भी एनिमल या इन्वायरमेंट का कलर सेम हो उसे हम क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं. एपोस्मेटिक कलरेशन किसको कहते हैं? रिफर्स टू द कंडीशन व्हेन एन एनिमल शोज कंट्रास्टिंग कलर्स पैटर्न्स टू वन अदर एनिमल्स. जो भी उसके सामने एनिमल्स होंगे, एनिमीज होंगे उसके, वो अपने बॉडी के कंट्रास्टिंग कलर्स पैदा करेगा ताकि वो एनिमीज़ के अगेंस्ट जो है उन्हें वार्न कर सके. सो सच कलरेशन इज नोन एज एपोस्मेटिक कलरेशन. मिमिक्री रिफर्स टू एनी कंडीशन व्हेन color of one animal is similar to the color of other species. जब 2 स्पीशीज़ के दरम्यान जो उसके बॉडी कलर है वो अगर सेम हो, सो दैट इज़ नोन एज मिमिक्री. द स्केलेटन ऑफ रेप्टाइल्स इज हाईली ओसिफाइड. रेप्टाइल्स का स्केलेटन हाईली ओसिफाइड है, हल्का होता है, खोखला होता है. द स्कुल ऑफ रेप्टाइल्स आर लॉन्गर देन दोज ऑफ द एम्फीबियंस. रेप्टाइल्स का स्कुल लॉन्गर होता है एम्फीबियन से. द रिब्स ऑफ द रेप्टाइल्स आर हाईली मॉडिफाइड. उनके रिब्स हाईली मॉडिफाइड है, हाईली वेल डेवलप्ड है. द रिब्स ऑफ स्नेक्स हैव मस्कुलर कनेक्शन विद द स्केल्स ऑफ द एब्डोमिन फॉर लोकोमोशन. स्नेक्स के जो रिब्स हैं उसके रिब्स का मस्कुलर कनेक्शन है स्केल से जो कि एब्डोमिन में पाए जाते हैं. So that is why such connection of muscular with the scales help them in locomotion. The tongue of turtles and crocodiles are non-protrusible. Non-protrusible means मतलब वो अपना टंग बाहर नहीं निकाल सकते. Which means they cannot take or extend their tongue out of mouth. The vipers belong to the family Viperidae, which possess hollow fangs on the maxillary bone. Coral snakes, sea snakes and cobras also have fangs which are rigidly attached with the upper jaw. In snakes, the venom glands are actually the modified salivary glands. Snakes में venom glands होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं? एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो फिर वो modified salivary glands हैं. The venoms are mixtures of neurotoxins and the hemotoxins. However, usually or primarily hemotoxin toxic in nature only. The reptiles possess 2 arteria and 1 ventricle. Reptiles में 2 arteria होते हैं और एक ventricle होता है. The ventricle of most reptiles is incompletely divided. वो completely divided नहीं होता. Most reptiles are ectothermic. बहुत से reptiles ectothermic होते हैं. During high temperature, some snakes do panting. कुछ स्नेक्स पेंटिंग भी करते हैं, लाइक दैट ऑफ द बिहेवियर ऑफ डॉग्स. सम रेप्टाइल्स कंटेन मीडियन आई विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ द रूफ ऑफ फोर ब्रेन. द रेप्टाइल्स यूज जेकबसन्स ऑर्गन एज देयर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन. रेप्टाइल्स जेकबसन्स ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ऑल्फेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ को सूंघने के लिए. However, turtles and apsids do not have Jacobson organ. Turtles में Jacobson's organ नहीं होते हैं. The snakes and lizards use their protrusible and forked tongue as their accessory organ. Snakes और lizard अपना forked और protrusible जो कि बाहर निकालते हैं अपना टंग, वो यूज़ करते हैं as an accessory organ, ताकि in this way the tongue moves to the Jacobson's organ to detect certain odors, ताकि वो certain चीज़ों को सूंघ सके. Pit organs are the heat sensitive organs which detect heat.
and these are present in rattlesnakes and pit vipers. Diving reptiles such as sea snakes and sea turtles conserve their body's heat by pushing blood into the center of their body. So this is their uh, adaptation and behavior that help them to conserve their body heat. So I hope these points will help you out in your competitive examination. Thank you very much.